हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि। स्वागत है आपके अपने चैनल रश्मि @JRF ग्रुप पर। सो हियर वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर दैट इज अगस्त 2024। इसके जस्ट बिफोर हमने एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं दैट इज योर दिसंबर 2024। तो ये आपके रिसेंट पेपर है। रिसेंट पेपर में आपके सॉल्व करवा रही हूँ ताकि जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वो आपको पता रहे एंड इसके अकॉर्डिंग ही आप प्रिपरेशन कर सके। कभी भी किसी भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यदि आप इसकी प्रिपरेशन करते हो तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेयर इज द पार्ट 3 फॉर द यूजीसी नेट अगस्त 2024 पेपर। इट इज द री एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट हुआ था उसके ही पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व एटलीस्ट 10 पेपर आपके बिफोर एग्जाम यदि सॉल्व हो जाएंगे डेफिनेटली यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। आपको पैटर्न भी अच्छे से पता चल जाएगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, साथ में आप ज्वाइन कर लीजिए द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पर you will get the PDF and update and notification about the classes. Then for the daily mock test series you can join my channel, you can download my app and इस process के through आप क्या कर सकते हो, फ्री mock test में participate कर सकते हैं। Now I have a live courses also running. So in this live course you can enroll for the complete live course and you could have additional discount of 1000 rupees. So in just 5999 you can enroll for the live course. In live course you will get everything like theory and practice session is live, practice of NET and GATE PYQs, mock test series, revision, PDF material, daily live classes, access through the app and 24/7 doubt support. And this is the live course, but I have recorded course as well. So these are the multiple subscriptions are available for the recorded course. According to your need, you can select your recorded course and enroll into the course. Correct? And now we have one more course that is the practice course for the computer science, especially designed course for those students जिन्होंने थ्योरी तो प्रिपेयर कर लिया है बट नाउ दे नीड द प्रैक्टिस ओनली बिकॉज लगता है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी है। तो भाई रिवीजन के लिए अभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है बट लाइव प्रैक्टिस सेशन टॉपिक वाइज practice, unit wise practice, NET previous year, GATE previous year and FYQs practice are available. Again you can apply the discount coupon of discount 1000 and could get this course in just 3499 rupees. So these are the my some courses on the UGC net. Other than this, then I'm also preparing for I'm also preparing a student for the assistant professor examination. So if you are preparing for that, you can also contact to me for these courses. So here is my mobile number. These are my toppers. और चलिए कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ 23 अगस्त 2024 का पेपर। तो इसके पहले हमने यूनिट 1 2 3 ये सॉल्व कर चुके हैं। नाउ वी हैव यूनिट नंबर 4 बट बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट नंबर 4 हियर इज अ मैसेज फॉर यू। नथिंग इज इम्पॉसिबल, the word itself says I am possible. Correct? So nothing is impossible. Try करिए and you can qualify this exam. Now देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है consider the transaction T1 T2 T3 and the schedule S1 and S2 is given. Okay, here we have transaction, here we have schedule. Now आपको find out करना है which of the following true about the schedule. S1 conflicts eligible है, S2 conflicts eligible है, बोथ नन। ठीक है, तो देखिए ट्रांजेक्शन्स की तो जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप शेड्यूल चेक कर लीजिए। फर्स्ट ऑपरेशन इज अ रीड ऑपरेशन। क्या इसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? इसका कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो कंडीशन में बनेगा, इफ वन ऑपरेशन इज अ राइट ऑपरेशन और वो जो राइट ऑपरेशन है वो या तो W2 परफॉर्म करे या W3 परफॉर्म करे ओवर द डेटा आइटम X। So we have to just find out this W1X मिल रहा है and W2X या W3X नहीं है, so there is no conflict for this. R3Y के केस में R3Y could have the conflict, either W1 will write
एक्स और W2 विल राइट इट। तो इसके बाद आप सर्च कर लीजिए कि राइट ऑपरेशन क्या वाई पर परफॉर्म हो रहा है बाय W1 और W1 or W2. So here we have W3 and W1 but on Z. So no conflict. चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आपका क्या है R3X के केस में आपको चेक करना होगा whether there is a right operation by 1 और right operation by 2, है ना। R2 है तो right operation by 3. So here we have right operation over the data item X. So we have right operation on data item X is present है W1X. तो भाई यहाँ कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है क्या, T3 से आपका एक कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है टूवर्ड्स T1 क्योंकि ये W1X है। देखिए रीड राइट ऑपरेशन, वन ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट एंड डेटा आइटम इज कॉमन। ठीक है, डेटा आइटम आपका क्या है, कॉमन है ना, डेटा आइटम कॉमन है। हियर वी हैव कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू। रीड राइट ऑपरेशन, डेटा आइटम कॉमन है, ट्रांजेक्शन डिफरेंट है फ्रॉम T3 to T1। ओके डन है। इसके बाद देखिए R2Y के लिए क्या चेक करना होगा, W1Y या W3Y है क्या। तो हियर वी हैव Y, नो Y तो राइट ऑपरेट Y, W3Y यस ये रहा R2Y एंड W3। ट्रांजेक्शन डिफरेंट है, डेटा आइटम कॉमन है एंड यहाँ पर एक ऑपरेशन आपका राइट ऑपरेशन है। तो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम T2 to T3, देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम T2 to T3। ओके खत्म। नाउ R2Z के लिए क्या चेक करना होगा, W1Z या W3Z है। तो देखिए बगल में ही लिखा हुआ है W3Z, डेटा आइटम कॉमन है, वन राइट ऑपरेशन है। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम 2 to 3 ऑलरेडी आपने ड्रॉ करके रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलिए, वी हैव ऑलरेडी 2 to 3। ठीक है, नाउ W3WY कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। W3Y में आप सर्च करोगे सिर्फ W1Y या फिर W2Y। ठीक है, एटलीस्ट हाँ, एंड यू कुड हैव द रीड ऑपरेशन, एटलीस्ट वन राइट ऑपरेशन है। तो Y डेटा आइटम आगे यूज ही नहीं हुआ है। Z के लिए हियर वी है W3Z R1Z, कॉन्फ्लिक्ट है W3Z एंड R1Z। वन ऑपरेशन इज राइट ऑपरेशन, डेटा आइटम कॉमन है, ट्रांजेक्शन डिफरेंट है। तो 3 से 1 पर मतलब यही डायग्राम रहेगा। नाउ इसके बाद R1Z एंड W1Z, ये अगेन कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है। R1 रीड राइट, नो कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज सेम ट्रांजेक्शन है, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलेगा, ऑल 3 ट्रांजेक्शन आर सिमिलर। तो ये आपका है S1 is conflict serializable. Why conflict serializable? Because there is no cycle. यहाँ cycle नहीं है, तो it is your conflict serializable. Similarly, you can find out for the second one. ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेकंड के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। That is for S2। R1X के लिए क्या सर्च करेंगे, डू वी हैव W2X एंड W3X। ठीक है, तो R1X के लिए यदि आप सर्च करेंगे W1X ही मिल रहा है। ओके नो कॉन्फ्लिक्ट। फिर R3Y के लिए आप सर्च करोगे W2Y एंड W1Y। So I have no W1Y, no W3Y is here, W3Y। तो ये देखिए R3 W3, कोई फायदा नहीं, हम सर्च कर रहे हैं W1Y या W2Y, तो यहाँ भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। R2Y के लिए देखना होगा W3Y या W1Y। तो R2Y के लिए W3Y कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रॉम T2 से T3 की तरफ कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, T3 से T2 पर कॉन्फ्लिक्ट है। फिर R3X क्या देखेंगे, W1X या W2X। W1X मिल गया R3 से T3 से। ठीक है, यहाँ आपका कॉन्फ्लिक्ट बन रहा था T2 से T3 एंड T3 से T1 का कॉन्फ्लिक्ट जा रहा है। T3 ये T3 है और ये हो गया T1। तो देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन डेटा आइटम X, डन। अब R1Z के लिए आप देखेंगे W2Z या W3Z। R1Z here we have W2Z, तो yes there is a conflict from R1 to
देयर इज कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम R1 टू T1 टू T2, साइकिल बन गया। तो ओनली S1 इज कॉन्फ्लिक्ट serializable, ओनली S1 इज कॉन्फ्लिक्ट serializable। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन नॉट बी डिकम्पोज इन BCNF विद द लॉसलेस ज्वाइन। तो इसमें आपको यहाँ पर BCNF प्रॉपर्टी चेक करना होगा। BCNF प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाइड है तो इट कैन बी डिकम्पोज इनटू द लॉसलेस ज्वाइन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन। इसको नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। How does a relation database ensure the data integrity? By encrypting all the data, by enforcing rules defined in the schema, by compressing the data for efficient storage, and by allowing the unrestricted access to all the user, है ना। तो by enforcing the rules defined in the schema, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is a SQL primarily used for the context of relational database? relational database में SQL किस पर्पस के लिए यूज होता है? तो SQL आपका यूज होता है टू डिजाइन यूजर इंटरफेस, टू क्रिएट मैनिपुलेट द डेटाबेस, display the database on web pages, format printed. Obviously to create and manipulate the database, it is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ रिलेशन R U V W X Y Z ऑन विच फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसीज आर होल्ड। नाउ व्हाट इज द कैंडिडेट की क्या करना है भाई, राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट है V इज प्रेजेंट, फाइंड आउट कर लो, V X एंड ऑन कैन डिटरमाइन X, कैंसिल करो, V Y कैन डिटरमाइन W, कैंसिल करो, X कैन डिटरमाइन U, कैंसिल करो, Y और Z बचे तो ये बन गए आपके मैंडेटरी एलिमेंट। ये आपके क्या बन गए, मैंडेटरी एलिमेंट, मतलब की में किसी भी कैंडिडेट की में ये दो एलिमेंट होना चाहिए, इनके बिना की नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए Z मिसिंग है, Z मिसिंग है, YZ WZ, Y मिसिंग है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। अरेंज द फॉलोइंग पेजेस ऑफ डेटाबेस डिजाइन इन द करेक्ट ऑर्डर। सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था दिसंबर 2024 में। तो वी हैव BCDA। आप क्या करेंगे, देखिए फिजिकल डिजाइन, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन और रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो वी शुड स्टार्ट विद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद कॉन्सेप्चुअल, देन यू विल हैव लॉजिकल डिजाइन एंड देन फाइनली फिजिकल डिजाइन। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस से स्टार्ट करिए एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द स्कीमा एंड द फॉलोइंग फंक्शन डिपेंडेंसी। P कैन डिटरमाइन Q, ठीक है, Q कैन डिटरमाइन R, R कैन डिटरमाइन S एंड S कैन डिटरमाइन Q। अब हमने बोला कि वी हैव डिकम्पोजिशन, इसके लिए थोड़े से स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक काम करती हूँ, आई हैव रिलेशन, क्या बनेगा, सबसे पहले हम डिपेंडेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं। R1 PQ है, दूसरा रिलेशन बन रहा है R2 QR एंड देन वी हैव रिलेशन R3 QS। ठीक है, सबसे पहले देखिए तीनों जो एलिमेंट है, 4 एलिमेंट, क्या वो प्रिजर्व है, PQ QR QS, यस दीज आर प्रिजर्व एंड साथ में इनके बीच में कॉमन एलिमेंट भी है। नाउ क्या करेंगे भाई, हियर वी हैव टू पॉसिबिलिटी ना, P डिटरमाइन Q या Q डिटरमाइन P हो सकता है, यहाँ आपके पास हो सकता है Q डिटरमाइन R या R डिटरमाइन Q, दीज आर द ट्रिवियल डिपेंडेंसी, Q डिटरमाइन S या S डिटरमाइन Q। नाउ P डिटरमाइन Q प्रेजेंट है, Q डिटरमाइन R, ठीक है, P डिटरमाइन नहीं, अब आप चेक करिए Q डिटरमाइन P, तो भाई Q का क्लोजर निकाल लो, Q कैन डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है ना, तो Q क्लोजर क्या देगा, Q कैन डिटरमाइन Q, Q कैन डिटरमाइन R, R कैन डिटरमाइन S एंड S कैन डिटरमाइन Q, बट Q डिटरमाइन P इज नॉट वैलिड, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे, इट इज नॉट अ वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी। Q डिटरमाइन R, यस Q डिटरमाइन R डायरेक्ट भी गिवन है, R डिटरमाइन Q डायरेक्ट नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, R का क्लोजर, R कैन डिटरमाइन S एंड S कैन डिटरमाइन Q, वेरी गुड, सो ये भी वैलिड है। Q डिटरमाइन S, Q डिटरमाइन S यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, बट Q डिटरमाइन S प्रेजेंट है, सो ये वैलिड है। S डिटरमाइन Q इज डायरेक्टली प्रेजेंट, तो यस ये जो फंक्शन डिपेंडेंसी है, नाउ इट इज वैलिड सेट ऑफ फंक्शन डिपेंडेंसी। इसमें चेक कर लेते हैं क्या डिपेंडेंसी प्रिजर्व है, क्या डिपेंडेंसी प्रिजर्व है। तो नंबर 1, P डिटरमाइन Q, yes it is present, Q डिटरमाइन R is present, R डिटरमाइन S विजिबल नहीं है,
तो अब हमको अगेन एक बार क्लोजर देखना होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस R can determine R can determine Q and Q can determine S. Yes, ये भी वैलिड प्रेजेंट है, प्रिजर्व है, S डिटरमाइन Q प्रिजर्व है। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस आपको मिल चुका है, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस आपको मिल चुका है। अब देख लीजिए लॉसलेस है कि नहीं। तो भाई P एंड Q में P एंड R यदि आप देखते हो Q आइटम कॉमन है, तो क्या ये किया है? यस, Q कैन डिटरमाइन की, इट इज द, यहाँ पर देखिए R1 एंड इंटरसेक्शन ऑफ R2 क्या मिल रहा है? Q, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। क्या Q की एलिमेंट है? यस, Q इज अ की एट्रीब्यूट फॉर R2, तो ये आपका यहाँ तक तो ठीक है, लॉसलेस नहीं है। नाउ R1 R2 जो रिलेशन है दैट इज PQR एंड R3 रिलेशन दैट इज QS, अगेन कॉमन आइटम है Q, क्या ये की है? तो यस, नाउ इट इज द की एलिमेंट फॉर R3, तो ये आपका लॉसलेस भी नहीं है एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस भी है, ये आपका लॉसलेस भी नहीं है, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेंस भी है। नाउ यहाँ पर आपसे बोला इन अ स्कीमा each field of R contain only atomic value, F can determine, CG can determine this is a set of function dependency, exactly the set of function dependency that it hold, relation किस में होगा? तो देखिए CH can determine G। स्टेप 1 क्या होती है? सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लो कैंडिडेट की, सबसे पहले आप फाइंड आउट कर लीजिए कैंडिडेट की। तो CG कैन डिटरमाइन, CH कैन डिटरमाइन G, कैंसिल करिए। A कैन डिटरमाइन BC, B कैन डिटरमाइन C F H, E कैन डिटरमाइन A, F कैन डिटरमाइन E एंड G। तो जो भी की होगी उसमें D एट्रीब्यूट होगा। D का क्लोजर यदि मैं कैलकुलेट करूं सो D कैन ओनली डिटरमाइन D, तो मतलब इसको कंबाइन करना होगा। सपोज इट इज A प्लस D, AD का क्लोजर क्या बनता है? AD। नाउ A कैन डिटरमाइन BC, BC, C BC, B can determine C F H, CH can determine G and here we have F can determine E and G। तो ये देखिए ऑल और 8 एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं, मतलब AD could be a candidate की। यदि AD कैंडिडेट की है एंड हेयर वी हैव पार्शियल डिपेंडेंसी, A कैन डिटरमाइन BC, पार्शियल डिपेंडेंसी बन रही है, मतलब रिलेशन 1NF में है बट 2NF में नहीं है, 1NF में है बट 2NF में नहीं है। The fifth normal form is concerned with joint dependency। joint dependency मल्टी वैल्यूड किस में होती है? 4NF में। फंक्शन डिपेंडेंसी हर एक नॉर्मल फॉर्म में होता है, ठीक है। So here we have joint dependency. Next question, which of the following best describe the structure of relational database? It is organized into table with the row and column, data organized into file and folder, it is organized in hierarchical tree, it is organized into the network interconnected node। So network database model है, hierarchical database model है, फाइल्स एंड फोल्डर की तो यहाँ बात ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? रिलेशनल डेटाबेस में जो आपका डेटा अरेंज होता है वो टेबल एंड रो एंड कॉलम में होता है। सो दिस इज योर DBMS, ठीक है, ये आपका DBMS का पेपर था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ठीक है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट नंबर 5, ठीक है, यूनिट नंबर 5। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग, सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, दीज आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल सेशंस फॉर यू। So which of the following statement are true about the process control block? Process control block के लिए true statement. The process control PCB contain the information about the process state such as it is running, waiting or terminated. Correct है. Process control block include the code and data segment. The process control block store the processor memory management information such as page table क्या है, segment table क्या है, and process control is used to track the process scheduling information and CPU scheduling information. So here we have all three statement A, C, D. It only contains the information but it does not include the program code on data segment. Here we have process control block that have process state, process counter, CPU register, CPU scheduling algorithm या इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड IO स्टार्ट, बट आपको कहीं पर भी कोड या डेटा सेगमेंट नहीं मिलेगा, है ना। तो दिस इज द आंसर ऑप्शन A, C, D
ACD is the answer. Next question देखिए, which of the following statement are true about the mutual exclusion? Mutual exclusion ensure that only one process can be in critical section. Yes. Mutual exclusion are designed to prevent the conflict and ensure that only one process can access share the resources. Mutual exclusion can be used in various algorithms to ensure that process do not enter in critical section simultaneously. Mutual exclusion allow the multiple process to access the critical section simultaneously. कौन सा ऑप्शन फॉल्स है? Which statement is false? ऑप्शन डी, ए बी सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, है ना. डायरेक्ट डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, बट हियर मल्टीपल प्रोसेस, जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट है ना. Mutual exclusion means one process at a time, one process at a time. Which of the following statement are true about the privileged instruction? Privileged मतलब बोल सकते हो जो आपके सिस्टम कॉल है, तो it can be only executed by operating system kernel, not by user obviously. Now it is designed to perform operation that can be directly affect the hardware or system state such as IO operation or changing the memory management setting. System calls की बात हो रही है. User application can execute privileged instruction if they have to correct permission and set by operating system. ना भाई ये privileged है और सिर्फ कर्नल इनको एग्जीक्यूट करेगा. It is usually executed in user mode to ensure the safety. नहीं, ये एग्जीक्यूट होते हैं कर्नल मोड में. तो C and D आपका फॉल्स है. A करेक्ट है. It can be executed by only operating system या कर्नल and it is designed to perform operation on directly affect that could directly affect hardware or software state. Both statement are correct. Next देखिए, match the table. ठीक है. Evict the least recently used process. Evict the least recently used process. Extend memory क्या होता है? Virtual memory. Logical to physical mapping किस में परफॉर्म करते हैं? पेजिंग में. And सर्कुलर डिस्क एक्सेस सी स्कैन, और ये हो जाएगा लीस्ट रिसेंटली यूज्ड. देखो डायरेक्ट खुद ही मैच दिया हुआ है. तो ऑप्शन ए इज 3. ऑप्शन ए इज 3. नाउ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज जॉब, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम या प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. Each process is assigned a priority. Priority scheduling ensure fair allocation of CPU response, CPU time by assigning a time slice. Round robin process are executed in order they arrive. FCFS select the process for execution with smallest next burst. Shortest job first. Shortest job first. चलिए नेक्स्ट आया था बैंकर्स एल्गोरिथम पर. तो ये पैराग्राफ है. द बैंकर्स एल्गोरिथम इज अ क्रिटिकल डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड. ठीक है. एंड डिजाइन टू फैसिलिटेट रिसोर्स allocation without causing deadlock. It operates by maintaining the information about maximum resource. Each process may require current allocated resources and the available resources in the system. The algorithm check each resource request to determine if granting it would leave the system in safe state. ठीक है. सेफ्टी आप चेक करते हो, meaning that there is always a sequence in which all the process can complete their execution without getting stuck due to the resource unavailability. Each process must be specify maximum demand for each resource type before it start execution. When a process requests the additional resources, the algorithm check if granting of request will keep the system in safe state. If so, the resources are allocated, otherwise process must wait. What information is used to determine if the resource request can be granted? Available resource and current allocation of each process, the CPU utilization, number of process waiting for resource, arrival of each process. तो भाई हम देखते हैं अवेलेबल रिसोर्सेस एंड करंट अलोकेशन चार्ट. कितने रिसोर्सेस अभी अवेलेबल हैं और कितना करंट अलोकेशन हम कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम देखते हैं यदि रिक्वेस्ट सेटिस्फाइड होगी और सेटिस्फाई अलोकेट करने के बाद यदि सेफ स्टेट मेंटेन है तो हम अलोकेशन करेंगे, अदरवाइज हम परमिशन ग्रांट नहीं करते हैं. Which is of the following not a requirement of bankers algorithm to grant the resource? रिक्वेस्टेड रिसोर्स मस्ट बी अवेलेबल, बिल्कुल चाहिए तभी तो आप अलोकेट कर सकते हो. द सिस्टम मस्ट बी इन सेफ स्टेट आफ्टर ग्रांटिंग. यस.
the request must not exceed the maximum resource of process can request. Yes, and the process must be the only one requesting resource. तो यहाँ जरूरी नहीं है कि सिंगल रिसोर्स की डिमांड प्रोसेस कर सकती है. इट कैन रिक्वेस्ट मोर देन वन रिसोर्सेज. बाकी अब थ्री कंडीशन ट्रू है. व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बैंकर्स एल्गोरिथम? It is to allocate resources optimally, to prevent the process requesting resource, to detect and recover deadlock. वो होती है deadlock detection algorithm. Maximize the CPU utilization. ये CPU करता है CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू. अब आपका रहता है allocate the resource optimally and prevent the process from requesting the resource. To allocate the resource optimally, it is the purpose of Banker's algorithm. Next question, what is the significance of Banker's algorithm in the terms of resource management? It ensures that all the process finish their execution without deadlock. बिल्कुल सही. It eliminate the need for process to request resources. नहीं, process को resource तो request करने ही होंगे. It accelerate the execution of critical section. भाई critical section deadlock दोनों अलग चीजें हैं. And it minimize the number of context switch. भी कहीं से relevant नहीं है. Context switch हमारा depend करता है CPU scheduling algorithm पर. Now, which data structure does Banker's algorithm use to maintain the state of available, maximum and allocated resource? तो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है दैट इज वेट फॉर ग्राफ. नहीं, ग्राफ है. यहाँ डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स में आप अवेलेबिलिटी, नीड, रिक्वेस्ट मेंटेन करते हो. सो वी हैव मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स. ऑप्शन हो जाएगा 4. ठीक है, इस तरीके से अवेलेबल आपका एक तरीके का वेक्टर है, मैक्स आपका मैट्रिक्स है, अलोकेशन आपका मैट्रिक्स होता है, नीड एंड क्रॉस एंड एम साइज का मैट्रिक्स होता है. नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 6 एंड अदर. फॉर दिस प्लीज डू लाइक दिस session and share with your friend. Give your comments as well. Thank you.